ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 13ਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅੱਜ, ਅਤੇ ਨਾਲ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸੋਢ ਬੰਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਮਿੱਤਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਤਨਾ ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੋਜ ਭਰਪੂਰ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹਟਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੀ ਵਿਚਾਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮਿਲਦੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਟੁੰਬ ਜਾਵੇ, ਸੱਚਾਈ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਔਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਆਪ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਹੈ ਜੇਤੀ, ਵਰਨਤ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਤੋਹਿ ਤੇਤੀ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਓਨਾ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੁੱਧੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਖੋਜ ਭਰਪੂਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਆਮ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਮ ਮਰਨੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਤਾਈਓ ਕਿਹਾ ਕਬੀਰ ਮੋਹਿ ਮਰਨੇ ਕਾ ਚਾਉ ਹੈ। ਸੜਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮਰਨਾ, ਰੇਲ ਦੀ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ, ਲਾਈਨ ਤੇ ਪੈ ਕੇ ਲੰਮੇ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ, ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿੱਛੇ ਝਗੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਔਰਤ ਪਿੱਛੇ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ। ਰਾਵਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕੀ ਸੀ, ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਕੀ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਕੀ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਲੜਾਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਮਰਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਕੇ ਦੁਆਰ। ਜੇ ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਰੀਏ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਚਨ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਵਿਚਾਰ, ਸਲਾਹੁਣੇ ਯੋਗ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਪੁਸਤਕ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੰਥ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, 12 ਸ਼ਬਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਔਰ 12 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। 12 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਲੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਾਕੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਦੇ। ਸੰਸਾਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਹਾਗਣੀ ਤੇ ਦੁਹਾਗਣੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਦੁਹਾਗਣੀ ਛੁੱਟੜ ਇਸਤਰੀ ਜੋ ਪਤੀ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ, ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਭਟਕਣ ਵਾਲੀ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬਦ ਚੱਲਣ ਹੈ। ਪਰ ਪਤੀ ਵਰਤਾ ਇਸਤਰੀ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਦੀ ਜੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਦਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਦਾ ਭੋਜਨ, ਭਾਵੇਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਸਤੀ ਦਰਗਹਿ ਪ੍ਰਵਾਨਿਆ। ਧੰਨ ਹੈ ਸੁਹਾਗਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭਾ ਗਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭਾ ਗਈ। ਦੁਹਾਗਣੀਆਂ ਭਾਵੇਂ 10 ਤੁਰੀਆਂ ਜਾਣ, 20 ਤੁਰੀਆਂ ਜਾਣ, ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੁਹਾਗਣੀ ਇੱਕ ਆ ਜੇ ਸਭ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਹਾਗਵੰਤੀ ਹੈ, ਜਤੀ ਸਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਸਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਸਾਰੇ ਝਿਜਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਦੁਹਾਗਣੀ। ਦੱਦੇ ਹੋੜਾ, ਦੱਦੇ ਔਂਕੜ ਨਾਲ ਵੀ ਦੁਹਾਗਣੀ ਪਾਠ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹਾ ਜਿਹਾ ਲਿਖਿਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੋਲਣਾ।
ਧ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਦੋ ਹਾਗਣੀ ਮੁੱਠੀ ਦੂਜੈ ਭਾਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਿਕਾਰੀ ਜੀਵਨ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਔਰ ਪਤੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਠੀ ਠੱਗੀ ਗਈ, ਉਹ ਦੁਹਾਗਣੀ ਛੁੱਟੜ ਔਰਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਉਣੇ ਨੂੰ ਧਿਰਕਾਰ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਜਿਉਣਾ ਬੇਕਾਰ ਹੈ, ਧਿਰਕਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਗ੍ਰਸਤੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਜੰਤਰਾਂ ਮੰਤਰਾਂ ਠੱਗਾਂ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਪਤੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਛੁੱਟੜ ਇਸਤਰੀ ਵਾਂਗੂ ਜਗਿਆਸੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਦਵੈਸ਼ ਭਾਵ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੁੱਟੇ ਪੁੱਟੇ ਗਏ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰ ਤੇ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੈ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛੋ ਵਿਵੇਕੀਆਂ ਜਾਏ, ਅਨੇਕ ਜੂਨੀ ਭਰਮ ਆਵੈ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਏ। ਫਿਰ ਮੁਕਤ ਪਾਏ ਲਾਗ ਚਰਨੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਏ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰ ਦੇਖੋ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਏ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਦੌੜ ਲੈ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ, ਕੱਲਰ ਕੇਰੀ ਕੰਧ ਜਿਉ ਐ ਨਿਸ ਕਿਰ ਟਹਿ ਪਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲਰ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਕੰਧ ਹੈ ਜਾਂ ਕੱਲਰੀ ਕੰਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੇਖਿਆ ਚਿੱਟਾ ਚਿੱਟਾ ਜਿਹਾ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹ ਇੱਟਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਭੁਰਦੀਆਂ ਇਹ ਨਿਸਕਿਰ ਟਹਿ ਪਾਏ। ਰਾਤ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਰ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੰਧ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਹਾਗਣਾ ਦਾ ਸਰੀਰ ਨਿਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕੱਲਰ ਖੇਤੀ ਬੀਜਿਆ ਕਿਉਂ ਲਾਹਾ ਪਾਵੇ। ਕੱਲਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਭੈੜਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕੱਲਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਕੱਲਰ ਹੀ ਲਾ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਮਗਰ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੌਣ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਿੱਚ ਪਹਿਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰ ਲਿਆ ਐਵੇਂ ਖਾਮਖਾਂ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕਾਇਆ ਕੋ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਕੰਚਨ ਸੁਹਾਗਾ ਢਲ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਲਰੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੰਧ ਵਾਂਗੂ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਹੱਡ ਗੋਡੇ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਆਹ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈ। 10-15 ਕੁ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੇੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਜਾਤ ਪਹਾਰਾ ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ ਅਹਰਣ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਹ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੇਮੁਖਤਾ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹੀ ਕਲਯੁਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇੰਨਾ ਗਲਤ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਭੱਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਉਪਾਸਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ, ਐਨ ਲੋਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸਰੋਂ ਜਮਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ, ਤਤਕਾਲ ਹੀ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤ, ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਮਾਤ ਨਾਮ ਕਹਿਰ ਦਾ ਹੈ, ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣੀ। ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਕੀ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਰਾਮਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਾਮਾਤ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰੇ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਅੱਖਰ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਣਾ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਭਲਾ ਜੀ, ਭੁੱਲਾ ਜੀ, ਭਾਓ ਜੀ, ਭਗਤੀ ਜੀ, ਢੈ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ।
पर अफसोस की गल यह है भी महाराज सच्चे पातशाह ने जिवें बचन कीता है कि एक तलाब दे विच कमल दा फुल उग्या होया, थल्ले डंडी नूं जाला लग्या होया। सो इस तरह वो जाले नूं डड्डू खांदा हौली हौली, पर कमल दे फुल दी खुशबू भंवरा लैके जांदा, बाहरों उड़ के आउंदा, तलाब दे उपर दी खुशबू लैके चलिया जांदा। ये हालात साडे हो गए भी असीं इस शुद्ध सरोवर विच रहिंदियां होइयां पदार्थां दे जाले नूं खा रहे हैं, पर खुशबू बाहरले लोग लै रहे गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी। बाहरले लोग पढ़ते ने महाराज दे स्वरूप नूं, विचारते ने, वाचते ने। बाहरले जितने भी लोग ने उच्चियां अवस्थां वाले वो भी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज तो किरपा लैंदे ने, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दा वो सिद्धांत है जिहड़ा धुर की बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई। दस्सिया ना आपां नूं प्रोफैसर साहब ने कि दुनिया दे विच संसार दे अंदर धुर की बाणी दी बख्शिश किसे कोल भी नहीं। विचार के देखना चाहिए बैठ के। कह नानक विचार देखो बिन सतगुर मुक्त ना पाए। इस करके जे विचार के देखो भी कदे टाइम ही नहीं गा बह के विचारन दा इस गल नूं भी साडे कोल इन्नी वड्डी बख्शिश गुरबाणी दी ये किसे कोल नहीं। तिन्नां लोकां 'च चले जाओ नहीं किसे पास। साडे कोल खंडे बाटे दा अमृत है, देखो तो किसे कोल होर कोल है, ये किसे कोल नहीं है। ਜਿਹੜੇ पंज ककार पंज बाणियां दा नितनेम कुरैतां तो बचण दे असूल ने ये बहुत घट मिलणगे। नहीं तो गुरु ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ चेला बनाउण दे मारे कहंदे कोई नहीं ना नहाई ना करी जो मर्जी करी जाई। इत्थों तक लोकां ने नकली गुरुआं ने लोकां नूं भरमाउण दे मारे कहता आत्मा ते कोई असर नहीं इन्हां गल्लां दा। शरीर करके जो मर्जी खाई पी भोगी जाओ सब ठीक ही ठीक है, मत्था इत्थे टेको मैं तुहानूं मुक्ति दे दिआंगा। ओहे जे कमले लोक उन्हां दे मगर लग गए मुक्ति बाजी सानू मिल जानी आ। हुण किवें कर साडे गुरु ने कहा बई तुहानूं लोड़ नहीं कोई क्रिया करन दी। दुपहरे भावें 12 वजे उठ के नहाओ, भावें विकारी हो जाओ, भावें जो मर्जी गंदगी खाओ। इत्थों तक शराब पीण वाले नूं, मीट खाण वाले नूं, तंबाकू पीण वाले नूं कहंदे इहदा किहड़ा आत्मा ते कोई असर है। आत्मा दा निर्लेप है ना। वो बंदे संसार दे अंदर जिहड़े दलिद्री सी, आलसी सी, धर्म नूं कमाउण तो अवेसले सी, वो जिहड़े डिगू डिगू करदे सी थल्ले नूं, उन्हां नूं नकली गुरुआं ने संभाल लिया। जिवें मरिंडे दे विच एक वारी कोई नकली गुरु आया होया सी, बड़ी पुरानी गल अज तो 40 साल 50 साल पुरानी है। कोई महापुरख उत्थे गए ते उस नकली गुरु नूं मिले, कहण लगे असीं तेरे नाल एक गल करनी है। वो जाणदा सी उन्हां नूं। फटाफट सारिਆਂ अपनी जिहड़ी नकली संगत सी कहण लगे बाहर जाओ मैं गल करनी। कुंडी ला के थल्ले बैठ गया। महापुरख कहंदे ओए शर्म कर माड़ी मोटी, आ लोकां नूं किहड़े पासे लाई जांदा, चंगे पासे नहीं ला सकदा। गुरु नानक साहब ने इन्नी किरपा कीती। वो कहना बाबा जी एक मेरी बेनती सुन लो। ਜਿਹੜੇ पक्के सिख ने मैं उन्होंने गुरुद्वारे जाण तो रोकदा, मंदिर जाण वाले नूं रोकदा, मस्जिद जाण वाले नूं रोकदा। ये ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਗੱਲ है, मैं नहीं कहंदा। कहंदा ਜਿਹੜੇ बेरड़े जे ने ਐਵੇਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਟ ਲੈਣ ਦਿਓ। क्या मेरी भी तो रोटी पानी चल जू वधिया। कहना पक्के नूं नहीं कहंदा भी तू हिल के आ उधरों। कहना कई ना ऊई आवागाउणी तुरे फिरदे ने। महापुरख कहने चंगा मर्जी तेरी, नाले तू नरकां नूं जाएगा नाले इन्हां नूं लैके जाएगा। सो इस करके अज संसार दे अंदर नकली गुरुआं दे मगर दुनिया तां लगी क्योंकि 10वें पातशाह दे सिपाही बनन तो डरदे ने। सिपाही जिहड़ा हुंदा उहदी जिंदगी बहुत हार्ड हुंदी है। ते लोकी चाहुंदे ने जिवें पुराने साधु सी, बैठे खीर खा ली, बैठे हो खा लिया, बैठे पूड़ियां खा लियां, बैठे ही कहंदे साधु ते मतीरा पई वधी जांदे हुंदे। आम पुरानी कहावत है, पई वधी जांदे खीरां खा 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 खा। ਇਹੋ ਜਿਹੇ साधु ਨੂੰ उपदेश करदਿਆਂ कबीर जी ने कहा सी कोई कर लिया कर, भजन बंदगी कर लिया कर। आ लोकां तो खीर कड़ा पूड़े लै लै खाई जाना। जे चढ़ाई करके बलद बन गया फिर भी तो देना पऊ लेखा। चार पाव दोए सिंह गुंग मुख तब कैसे गुण गई है, उठत बैठ ठेंगा पर है तब कत मूंड लुकई है। फिर मुंह कित्थे लुकाएगा जब प्राणियां मुंह दे उत्ते मारियां जट ने लिया लिया के। इस करके सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह कहते ने
मैं निरापुरा वो जीवन नहीं सी दिता कि माला फड़ी लम्मा पिया बस दलिद्री जिहा हो के जी साधु हैं हम। नहीं, एक्टिव सिपाही भी बनाया गुरुआं ने सानू, एक्टिव भी बनाया, नाल बाणा भी दिता, बाणी भी दिती है। सतगुरु महाराज ने सानू आत्मक जीवन भी बख्शिया। अंदरों आत्मक अवस्था अंदरों बन जानी होर चीज है, पर शरीरक तौर पर फिट रहना एक वखरी गल है। गुरुआं ने सानू ये भी दोनों चीज़ां दित्तियां। देण नूं तां सतगुरुआं ने बहुत कुछ दिता है। इसे करके खालसे दे मूहरे या खालसा, हुण मैं खालसा अखर खां अपनी छातियों भी चौड़ियां हो जांदियां, सारी दुनिया ही असीं भी खालसा, लोकां ने अपने नाम नूं ही खालसा लाया होया। खालसा अखर मैं समझदा बाबा दीप सिंह भाई मनी सिंह दा ही है। खालसे तो महाराज तुसीं आप ही हो, 10वें पातशाह खालस, फिर उन्होंने प्यारे 5 प्यारे खालस, 4 साहिबजादे खालस। असीं तां सिर्फ अजनों अपने जीवन अंदर झात मारदे इन्नी कहने कि खालसे दी चरण धूड़ी दे दे, गुरसिखां की हर धूड़ दे हम पापी पी गत पाहें। याद आ गई गल प्रोफैसर साहब ने जो कही, मैं भी दुनिया ते यही ढंडोरा दे रहा, वो अपनियां निशानियां मेटतियां सारियां, कोई माड़ी मोटी अकल करो, ये सिख कौम सुत्ती क्यों पई आ। सारियां निशानियां हौली 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 खत्म ही हो रही ने। बड़े चिर तो गल अंदर सी मन दे विच, और अज मैं सारी कौम नूं ही बेनती करदा, हौली हौली साडे सिरां तो केस ही उड़ाते। प्रचारक इहो जिहे टक्करे ने दूजियां दे जिहड़े विरोधी साडे, कृपान दी की लोड़ है, हुण तां टैंक आ गए, ਇਹਦੀ की लोड़ है, हुण तां ਇਹਦੀ लोड़ की है, ਇਹਦੀ लोड़ की है करके ना तुसीं सानू ही कहना, तुसीं आपदिआं नूं कहो तां दूजे धर्म वाले साडे धर्म च वड़ के प्रचार करदे आ भी ਇਹਦੀ की लोड़ आ, ਇਹਦੀ की लोड़ आ। आपां भी कमले होके मगर लग गए उन्हां दे, ਇਹਦੀ लोड़ नहीं, ਇਹਦੀ लोड़ नहीं, ਇਹਦੀ लोड़ नहीं, ਇਹਦੀ लोड़ नहीं। बस इस करके सारे जड़े थल्ले नूं डिग पे। हाँ जी, हुण तुसीं दसो काहदी लोड़ है? कहते जी नशे खाओ, केस घटाओ, जर्दे खाओ, है जी, तुसीं आ शराब पीओ, बेसवावां कोल जाओ, माड़े पासे लाउण दे सारिआं नूं, वो पुठे पासे लाई ने कहते आ तां ठीक है भी आ हुण बनिया बई लाल असली, दाड़ी कटाया शाबाश, ये है जी असली सिख। कहते तू आ बई, दूजा तां बाबा जी लगदा है। और पिंडां दे बच्चे जदों 15 साल दे होंदे ढाह के जबरदस्ती इंजैक्शन लाया जांदा नशे दा पंजाब च, जिन्हां ने नशे बेचने वो ये काम करदे ने। एक बार वो इंजैक्शन शरीर च प्रवेश कर जे तो मुड़ के उहनूं लोड़ ही पैंदी रहिंदी, अमली पुत्त बन गया। आ जट्टां दा बड़ा बुरा हाल पंजाब च, क्यों सारे ही अमली, प्यो भी अमली, पुत्त भी अमली। पंजाब कित्थे एडा सोहना सी ते अमलियां दा पंजाब हो गया। जब अखबारां वाले अंकड़े कढ़ कर दिंदे आप बड़े खुश हुंदे, देखो जी पंजाब च इन्ने दी रोज समैक बिकदी, इन्ने दी रोज पंजाब च आह चीज बिकदी, इन्ने दी आह बिकदी। ओह पंजाब जिथे मान नाल कहंदे सी इस पंजाब दे विच इन्ने जीवन वाले जति सती संतोखी महापुरख बैठे ने, इन्ने इन्ने पाठ करन बैठे वाले बैठे आ, अमृत वेले उठण वाला बैठा है। वो पंजाब जिथे भाई तारू सिंह ने खोपड़ी लहाई सी, कदे वो पंजाब केस नहीं सी लहाए। अज थां थां नाइयां दीयां दुकानां बणीਆਂ, थां थां दे उत्ते जान बुझ के ठेके खोले गए ने, थां थां दे उत्ते आप बंदे बेचते ने चीज़ां जा करके। आपां कहने चल कोई नहीं, भाणा मन के बैठे हैं। सो इस करके सारा कुछ आपां नूं देखना पवेगा। पटियाले ही जिन्ने निशानियां सी सारियां उड़ातियां, वो बरोटा जा वड़ता, मुड़ के इत्थे मोती बाग गुरुद्वारा साहब बहेड़ा सी जिथे 9वें पातशाह ने घोड़ा बन्निया सी, वो भी वड़ता, करहाली साहब भी वड़ता, गुरुद्वारा ही ढाता, फतेहगढ़ साहब चमकौर की गढ़ी ही ढाती, कहने इत्थे वधिया पत्थर का गुरुद्वारा बनाउने। और इन्नी वड्डी साजिश हो रही है तो साडी कौम जमा ही सुत्ती पई, लीडर भी सुत्ते पे, साडे सारे ही बंदे सुत्ते पे आ। पता नहीं इन्नी जबरदस्त अखां ते पट्टी बन्नी, इन्ना नशा खादा पैसों का। अगला कहना फड़ 5-10 करोड़ रुपया, तू ना बोली, सानू एक बारी सिख कौम का सत्यानाश कर लैण, तू ना बोली बस। इस करके जे जागृत ना होए बस फिर जानी पग लै जा करनी। लोगों ने कहना पग वाले बंदे कित्थों आ गए, कित्थों आ गए, तो है ही नहीं सीगे दुनिया च। सारे पंजाब दे विच मौन घौन तुरे फिरदे आ।
ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਲਕੱਤੇ ਨੂੰ ਕਥਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਵਾਂ, ਇੱਕ ਬੰਗਾਲੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੀ ਲਓ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦੂਜੀ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਹੈ। मैं कहा नहीं हम तो साधु बाबा है। मैं उसकी बोली समझाया, गुरुद्वारा में है, पाठ करते हैं, पूजा करते हैं। मैनू कहना सरदार होके नहीं पीता, क्या बात करता। एडा माड़ा प्रभाव है ना साडा दुनिया च। लोग ये समझते जिहड़े सरदार है बने ही शराब नूं ने, ये मीट नूं ही बने हुए हैं पक्के। ये जरदा खाण नूं, शराब पीण नूं, ये नशे खाण नूं, बेसवावां कोल जाण नूं। जब कलकत्ते एक बार 1969 ਦੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ 500 ਸਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਮੂਹਰਲੇ ਟਰੱਕ ਤੇ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲਾਈ ਹੋਈ, ਪਿੱਛੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਬੰਗਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਕੀ ਫੋਟੋ ਲਗਾ ਰੱਖੀ ਅੱਗੇ ਕੌਣ, क्योंकि ज्यादातर तो अपने ट्रक ही चलाते सारे थाई। वो कहना जो सबसे पहला इनका ड्राइवर था ये था, वो ये ट्रक सिखाता था इनको। उन्होंने बेचारे को की पता, उदा तो ठीक ही है तो सारी सृष्टि का ड्राइवर आ, मालक है चलाउण वाला, पर लोगों ते साडा प्रभाव नहीं चंगा। जिड्डे असीं चंगे आ, जिड्डी बाणी चंगी आ, जिड्डा साडे कोल धर्म चंगा, इहनूं जाण बुझ के साडे धर्म दी दिख नूं खराब कीता जा रहा। सानूं थां थां दे उत्ते किताबां दे विच माड़ा लिखिया जा रहा है। पंजवें पातशाह दी शहीदी नूं रोलिया जा रहा है। नौवें पातशाह शहीदी नूं इउं कह के रोलिया जा रहा कि वो तां औरंगजेब दे कोल उत्थे नौकरी करदे सी, फिर वो पैसों का झगड़ा होगा तां मारते हो। आ राजस्थान दे विच पुस्तक हुण तक लगी रही, CBSE सिलेबस हुण तक पंजवें पातशाह विरुद्ध इन्ना को लिखिया, 10वें पातशाह विरुद्ध हुण तक नियाणिਆਂ ਨੂੰ किताबां 'ਚ पढ़ाया जा रहा। ये तो गल्लां सारियां तो अखां बंद करके तो नहीं बैठे सी, सारा कुछ देख रहे हैं, की कर रहे हैं तुसीं। पर गल तो यह भी मैं तो इस गल्लों हैरान है भी मैं कल्ला अखां खोल के सारी कौम नहीं अखां खोल सकती। आ जिहड़े बच्चों के कॉमिक जे हुंदे ने वो सारियां दे विच बदनामी, सीरियल चलते हैं जिहड़े टीवियां उह च बदनामी, सरदार नूं रोल देणगे फिल्म दे विच शराबी दा, इदों उत्ते कोई रोल नहीं मिलता। सिख दिखाया शराबी, कहने शराब की एक्टिंग बड़ी सोहनी करते हैं। सो इस करके अपनी जिहड़ी बदनामी है, जिहड़ियां पग्गां लथ रहीआं ने, जिहड़े नशे वध रहे ने, तुसीं बाहरले गुरसिख कर सकदे हो, प्रेरणा दे सकते हो, प्रचार कर सकते हो अपने बच्चों नूं। उधरले रिश्तेदारां नूं भाई बहुत वड्डियां कुर्बानियां होईआं, शहीदियां होईआं, इत्थों तक नाम भी बदले जा रहे ने। आ कैलेंडर दे विच लिखिआ ना माता गुजरी, प्रोफैसर साहब ने बड़ा ठोक वजा के कहा माता गुजर कौर, वो गुजर कौर ही है माता। वो 10वें पातशाह की माता का अमृत ना छकिया होवे, ये कित्थे हो सकता। माता साहब देवा ही कही जाते हैं, कहते उन्हें अमृत नहीं छकिया। और खालसे की मां जी साडी मां, मेरी मां अमृतधारी, तो उन्होंने कहते ने अमृत ही नहीं छकिया उन्हें। माता सुंदर कौर नूं कहते माता सुंदरी, माता जीतो। तुहाड़ियां अखां सामने सारा कुछ हो रहा, तुसीं देखदे ही कुछ भी नहीं बोलते, ना कोई अखबार च बयान जाता, ना कोई रौला पाउंदे, किहड़ा लिखा रही है। 10वें पातशाह की फोटो बनाउणगे, दाढ़ी ऐ दिखाउणगे मैं कट्टी हुंदी है साइड तो। गुरु नानक साहब की फोटो होर ही तरह, अगे एक ओंकार दे उपरली कार ही मेटती सी, मसा रौला पा के ठीक कराई हो। इस करके जिहड़ियां ये चीज़ां हुंदियां ने, इकल्ला साडा ही फर्ज नहीं, सारी संगत का फर्ज बनता भी ये गल चलदी कित्थों, किहने शुरू की है। साडे नाल तो देखो ईसाई चंगे ने, इन्हां ने ईसा मसीह जी की एक फोटो बना के वधिया सारे चित्रकारां नूं कहता भी इहो जी वो बनाउणी है, बनावे जिहड़ा मर्जी, बनाउणी इहो जी है बस। माता मेरी दी फोटो देख लो, सेम चित्रकार अलग हो, फोटो सेम हो। साडे गुरु नानक साहब की किते फोटो कही जी आ, किते कही जी आ, किते इड्डी पीला जिहा रंग दिखाउंदे जिवें बहुत ही भैड़ा लगदा रंग जिहा, किते कहा जा, किते कहा जा, किते कहा जा। 10वें पातशाह की फोटो किते कही जी आ, किते कही जी आ। इहदा मतलब कि साडा एक थां यकीन टिकाउणा ही नहीं चाहुंदे। ये सारियां चीज़ां अवेसले होके ना देखो, सावधान होवो। जो सानू थल्ले सुट्टण दा यतन करदे ने उन्हां नूं समझाओ माड़ा मोटा भी ये तुसीं की करी जांदे हो। इस करके हुण जे मैं एक अद्धा बंदा कार सेवा नूं चिट्ठी पाऊंगा, मेरी सुण थोड़े लगने हो,
अज तो रेजूलेशन पास करके सारियां प्रबंधक कमेटियां भेजण भी एज इट है, जिवें पई है चीज़ उवें रहण दिओ। ईसाई मत विच जिथे ईसा जी नूं सूली चाढ़िया वो कंध उदां ही पई है कि नहीं, जाके देखो। आसे पासे नवीं बिल्डिंगां बनातियां पर वो कंध नहीं छेड़ी कि ना ये साडी निशानी है। जिहड़ियां कौमां जिउंदियां जागदियां होंदियां उन्हां निशानी नहीं कोई मेट सकदा उन्हां दी, कहंदे इसे तरह ही पई रहूगी। ये तां 50-50 लाख डॉलर दे दिंदे अपनी पुरानी चीज़ होवे कोई लभण विच लियाओ, ने कहंदे लियाओ बई लियाओ साडी पुरानी चीज़ है। साडे सिख कहंदे पुरानी चीज़ हो गई इहनूं सिट दिओ परे, होर लियाओ। इस करके जिथे अज शहीदी का विचार सुनाया, साहिबजादियां दी शहीदी गल फिर चली, उत्थों भी वो कंध जी उन्होंने जी संगमरमर नाल रोकती, पत्थर लाता, होर थावां दी निशानियां ढातियां, बिल्कुल खत्म करतियां। सो मैं सोचे में कल्ले ही शायद भी इस गल में तां नहीं सी बोलदा हुंदा। अज मैनूं अपना सो प्रोफैसर साहब मिल गए, शुक्र है। एक तां नाल है मेरे नाल, मैं इन्हां नाल है, मेरे नाल तुसीं भी साडे नाल रलो। मैं तो बड़ा रौला पाउणा निशानियां ना मेटण दे, अपणियां सारियां निशानियां मेट छड्डियां ने। ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਗਾਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਲੇ ਤੱਕ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਲਗੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ ਇਹ, ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੀ ਪਈ ਆ ਹਲੇ। ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਜਾਇਦਾਦ ਇੰਨੀ, ਕੀ ਕਰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਇਹ ਜੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ 175 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਚੋਂ 160 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮਲਬਾ ਬਣ ਕੇ ਡਿੱਗੇ ਪਏ ਨੇ, ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਡੰਗਰ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ। अपने घर आप रखे हुए ने, छड़ देने चाहिए। जब गुरु ग्रंथ साहिब का कितने प्रकाश नहीं, कोई सेवा नहीं, चलो होर नहीं झाड़ू ही दे आया करिए जाके उत्थे जा करके माड़ी मोटी कोई टीप टल्ला ही कर दिए, किसी थां की सफाई कर दिए। बिल्कुल पंजा साहब ननकाना साहब जा रहे हैं, वो गाहां नहीं जाया जाता। पंजा साहब ननकाना साहब तक ही खर्चा किया। इन्ना देख करके मन नूं दुख हुंदा भी वाहिगुरू ये तो मेरे सामने एल्बम जी आउंदी हुई ना, कानूं आ गई मेरे सामने। इस करके जिहा जिहा फिर प्रसंग सी, वो गुरु नानक साहब ने भी उही प्रसंग देता, कहते त्रिग जीवन दुहागणी मुट्ठी दूजा भाए। वो जी द्वैश भा च ला के लुट्टी गई तरकार है दुहागणी, जिन्हें गुरु ग्रंथ साहिब नूं गुरु नानक साहब नूं छड्ड के इधर उधर भटकदियां फिरदियां कलर वाली कंध वांगू डिगना इन्हां ने, डिगी जा रहे ने। बिन शब्द सुख ना थिया फिर बिन दुख ना जाए, गुरु उपदेश तो बिना पति परमात्मा की प्राप्ति हुंदी नहीं। महाराज कहने पहला उपदेश लो, फिर वाहिगुरू दे मिलाप होने तो बाद आत्मक आनंद मिलता। पर जे उपदेश ही नहीं लिया बैठ के, रोज बाणी पढ़ते हैं स्पीड ते, इन्नी तेज नितनेम हुंदा, इन्नी तेज रह रास, इन्नी तेज सुखमनी सा कर कर करके बाणी पढ़ी। आ बहुत बिजी है। वो दिन केड़ा आऊ जिस दिन आपां बाणी सहज विच पढ़ांगे? वो दिन कदों आऊगा जिस टिका दे नाल आखांगे किसी भी अखर नूं, कहने बस शुक्र है 5 बाणियां पढ़ लियां, अपना गलों गलावा लाया, काम मुकाया बस। वो जिहड़ा गुरु साहब ने सिद्धांत दिता है, बिन शब्द सुख ना थी है। महाराज सच्चे पातशाह कहंदे ने शब्द तो बिना आत्मक आनंद आउणा नहीं, फिर बिन दुख ना जाए, फिर पति परमात्मा तो बिना साडे दुख जाने नहीं। क्योंकि साडी कमाई घट गई, कमाई नाम दी घट गई, पैसे दी कमाई वध गई, पैसा हो गया बहुत ते कमाई खत्म हो गई, दूजी नाम दी कमाई है ही नहीं साडी। गुरुद्वारे पक्के सिख कच्चे, गुरुद्वारे कच्चे सी सिख पक्के सी। मुंधे फिर बिन क्या सिंगार, जिवें पति नूं मिले तो बिना इस्त्री नूं शिंगार कीते दा कोई सुख नहीं, वो तो छड्डी बैठा तो शिंगार करी जाती। महाराज कहने इवें जिग्यासु रूप इस्त्री है, पति परमात्मा शरधा भाव तो बिना जाप तप रूप शिंगार करने की लोड़ नहीं। अजिहे शिंगार का की फायदा जो भगती नहीं करनी, परमात्मा च शरधा ही नहीं। जो गुरु ग्रंथ साहिब साडी शरधा ही नहीं, $1 $10 20 100 तक तो मत्था टेकिया लिया, सारी गल इउं पक्की हुई है, प्रसाद लैके घरे बस, एक पैसा भी कोई असर है। इस करके सतगुरु महाराज कहते हैं कि सतगुरां दे कोल आउण दा मकसद की सी साडा। मैं अज भी सोचदा बह के संगत नूं कहा कि रोज 10 मिनट इस काम लई कढो कि गुरु ग्रंथ साहिब कौन ने। 10 मिनट ये रोज सोचना बैठ के कि गुरु ग्रंथ साहिब कौन ने, की ने,
कित्थों ये बाणी आई है, ये एडी वड्डी दात सानूं मिली है, सोचना पैना। नहीं तो महाराज कहने जन्मां जन्मां दे गेड़े फिर तैयार रहंदे साडे वास्ते। दर घर ढोई नाल है, दरगह झूठ खुआर रहाओ। कहने जदों स्वरूप रूपी घर दे अंदर जगह ही नहीं लवेंगी, जीव रूप इस्त्रीए अंदर साडा स्वरूप रूप घर है, जदों उहदे विच साडा निज घर विच वासा ही नहीं हैगा, निज घर महल पावो सुख सहजे, बहर ना होएगो फेरा। महाराज सच्चे पातशाह कहंदे ने मन परदेसी वे प्यारे आओ घरे घरे आ जा, हुण बाहर ही तुरिया फिरदा, कदे तां घर बैठेगा। सतगुरु कहंदे झूठ बोलण करके, झूठे पदार्थां 'च लगण करके तू दरगाह दे विच खुआर ही होवेंगा जाके। ये जीव रूप इस्त्री तू खुआर ही होएगी, पदार्थां दे विच ना लग। पदार्थ दा साडे मंगर मंगर ने, लक्ष्मी तां मंगर मंगरा खालसे दे। सतगुरु कहंदे सारियां चीजां मंगर। भाई गुरदास कहंदे चार पदार्थ आखियन सतगुर दे, सिख न ले, राज ना चाहो मुक्त ना चाहो। कहने लै ला बई, कहने ना जी। की चाहुंदा? मन प्रीत चरण कमलारे, आप सुजान न भुल्ले, सच्चा वड किरसान। वो वाहिगुरु परमात्मा एक वड्डा जिमींदार है, सारा जगत उहदी खेती है। फिर वो आप वड्डा चतुर सियाणा है, किसे बूटे नूं भुलदा नहीं। आप सुजान न भुल्ले ही वड्डा सच्चा वड किरसान। आपां उहदे बूटे हैं सारे। महाराज कहने जे उहदे नाल मेल करना चाहुंदा तू कामा बन के जिमींदारे वाला काम कर लै। फिर तू उहनूं मिलना चाहुंदा तां इउं तैनूं दसदे तरीका। की तरीका जी? पहला धरती साधक है, सच नाम दे दान। कहने सारिਆਂ नालों पहला बुद्धि रूप धरती नूं साध चंगी तरह शुद्ध कर, फिर सच नाम रूप दा दाना इहदे च बीज। नाम बीज संतोख सुहागा, रख गरीबी वेस। सतगुरु महाराज बड़ा सोहना उपदेश दिंदे ने। जे तां आपां लैना एवें मनोरंजन ही भी चलो अज ऐतवार, अज नवां साल, अज सारे इकट्ठे होए, बुधवार इकट्ठे होए, फिर तां ठीक है, मनोरंजन अपना करी जाओ। ते जे आपां सीरीअस हो के सिੱਖੀ नूं कमाउणा, फिर सिੱਖੀ नूं दस तां गए ने कायर बंदा धर्म नूं नहीं कमा सकदा। बंदा निडर होकर अपने धर्म नूं कमा सकदा, क्योंकि लोकां ने कहना ये वखरा ही आ गया, असीं तां जद माला नहीं फड़ी, तू क्या फड़ी? वो कोशिश करदे माला फड़ के सिੱਟੋ परे। जद असीं नहीं पाठ करते तू क्या करदा? लोकी कहंदे। जे कोई एक जना गुरुद्वारे जांदा, 99 खुंडां ते बैठे पिंडां 'च कहंदे आ किधर चलिया? कहंदे ऊं चलिया गुरुद्वारे कड़ाह खाण जांदा होना। वो कहंदे ये क्यों जावे बई, जे असीं नहीं जांदे। खिੱਚਣ वाले सानूं बहुत ज्यादा ने। सतगुरु कहने पहला धरती नूं साध चंगी तरह साधना कर करके पंजां प्यारिਆਂ तो नाम लैके, 5 प्यारिਆਂ ने नाम देना है। फिर किवें जिवें आपां बीज लियाईए, बहुत शुद्ध खेती बीजण वास्ते खेत नूं सुधार के उहदे विच बीज बीजण लई लियाईए बोरी, 5 कुंटल 10 कुंटल बीज लिआंदा ना ते घरे लिया के रखता, वो बीजे ही नहीं। 6 महीने लांघे बीजे नहीं। लोगों ने तो दाने भी कढ़ लए, बीज उत्थे ही पए ने, उहनूं घुणा लग गया। महाराज कहने कई 5 प्यारिਆਂ तो नामदान लैके उन्हें दिता, वाहिगुरु वाहिगुरु करना भाई, मूल मंत्र पढ़ी, 5 बाणियां पढ़ी। ये कहने मैं अमर छक लिया, बस नामदान लै लिया। वो बीजना भी सी ना। पहला धरती साधक है। महाराज सच्चे पातशाह कहते ने पहला अपने शरीर नूं साधना सी, रहत रखनी सी। कर इशनान सिमर प्रभ अपना मन तन भय अरोगा। शरीर दे अंदर हिरदे दे विच नाम नूं बीजना सी, नाम बीज। संतोख दा सुहागा रखना सी, गरीबी वेश रखना सी। हर अमृत वेले वत्ता का बीजिया, भगत खाए खर्च रहे निखुट्टै नाही। इस करके महाराज कहने फिर सच्चे नाम दा ओ जे दाना बीज दान कर, धरती नूं दाना दे, धरती तैनूं हजारां दाणे देवेगी। एक दाना बीजदे आ, धरती हजारां दाणे दिंदी। तुसीं एक बार कहो सतनाम श्री वाहिगुरु, सतगुरु 1000 बार फल देणगे दा। शाबाश। कहने संगत च बह के कहंदा, क्योंकि संगत विच फल बहुत वध जांदा। घरे तुसीं एक कणक दा दाना गमले 'च बीज दो, मन लो भी इहनूं गोडी कर खाद दे उगा लोगे, एक बल्ली लगू कणक दी, बस। बाद 5 बूटे बीज लोगे गमले 'च,
घरे किन्नी की खेती बीज लोगे, घरे किहड़ी थां है। चलो मान लो भी जी थोड़ी भी 1 क्विंटल कढ लोगे, पर जिन्नी खेतीबाड़ी खेत विच हुंदी है इन्नी घरे नहीं हुंदी। महाराज कहते जिन्ना नाम संगत विच बह के जपिया जांदा, इत्थे तां बोहड़ बन जांदा, बोहड़ बड़ा सारा, ते घरे किन्ना क जप लोगे। संगत दा महात्म दस्या महाराज ने, मिल साध संगत भज केवल नाम, संगत का गुण बहुत अधिकाई। इस करके महाराज सच्चे पातशाह कहते संगत का गुण बहुता ज्यादा। संगत विच बैठ के जदों आपां रात भी सिमरन कीता ते सिमरन आपां करदे ही रहने हर वक्त, ते किन्ना आनंद बनदा, किन्नी किरपा हुंदी महाराज दी। जे कल्ला बह के उच्ची उच्ची वाहिगुरू वाहिगुरू करी भी जावे, वो हिरदे च इन्नी छेती नहीं जांदा जिन्नी छेती संगत बोल बोल के वो आवाज साडे कन्नां 'च फिर गूंजदी रहिंदी 2 दिन, ते साडे हिरदे 'च भी वो आवाज आउंदी है। नौ निध उपजै नाम एक, कर्म पवै नीसान। हुण महाराज कहने नौ निधि रूप एक परमात्मा दा नाम फिर हिरदे 'च प्रगट हुंदा, क्योंकि आप सुजान जिहड़ा वो भुलदा नहीं ना। गुरु साहब आप सुजान चतुर ने, किसी मौके नाम नूं आप नहीं भुलदे ते अपने सिख नूं भुलण नहीं दिंदे, सियाणे ने। क्योंकि सच्चे दा स्वरूप जिहड़ा ना ते वड्डे जिमीदार ने उहदा स्वरूप भी सच्चा है। इस करके जिग्यासू पहला चाहिदा बुद्धि रूप धरती नूं चंगी तरह शुद्ध करके फिर नाम रूपी बीज नूं उहदे विच बीजे, उहदे विच एक नाम दी शक्ति नाल नव दा भगती रूप खेत पैदा हुंदा है। 9 निधियां दा खजाना नाम प्रगट हुंदा है। भगती दे प्रताप करके किरपा रूप निशानी पैदा हो जाती है। कर्म पवै नीसान, इस करके वो नीसान मस्तक दे उत्ते ही प्रगट हो जाता, बख्शिश हो जाती जीव दे उत्ते। कर्मखंड की बाणी जोर चलिया जाता। गुर को जाने ना जाने क्या तिस चज अचार। जिहड़ा गुरां दे प्रताप नूं जान के भी गुरां दे उपकार नूं नहीं समझ सकते, महाराज दे उपकार नूं आपां जाणे नहीं, क्या परोपकार आपां भी करदे ही हां, निआणिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆਂ, फिर की कोई कदर थोड़ी करदा। इन्नी कुर्बानी कीती महाराज ने, किन्नी की कदर कीती है। दुनिया अंदर ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੋਈ ਕਰੇ ਹੀ ਨਾ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਚੱਜ ਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਤੱਵ ਨੇ ਨਾ, ਭਲੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਿਸ ਅਰਥ ਨੇ। ब्रह्म रूप करके जाने, ये 6वें पातशाह ने कथा च भी कहा, बचन सूरज प्रकाश च आउंदा, कहते जेड़ा गुरु ग्रंथ साहिब नूं ब्रह्म करके जाणो उहनूं मुक्ति मंगण दी लोड़ नहीं, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब वाहो वाहो बाणी निरंकार है ते जेवड़ा वरना कोय। अंधलै नाम विसारिया मनमुख अंध गुबार। अंध गुबार जिहड़ा ज्ञान रूप गौड़े हनेरे करके जेड़े मनमुख लोक ने ना, वो ज्ञान विराग रूप नेत्रा तो हीने ने, अन्ने ने वाहिगुरू दा नाम कहंदे भुला ही दिता। आवण जान ना सुच चुकई मर जन्मै होए खुआर। मर मर के बार बार खुआर ही हुंदा रहिंदा, खुआर ही हुंदा रहिंदा, ना तां उहनां दा आउणा मुकदा, जम्मणा ना जाना पा मरना। आउणा जाना जम्मणा मरना खुआर ही हो जांदा, खुआर ही हो जांदा। चंदन मोल अणाया कुंगू मांग संदूर। कहने जिवें प्रताखी इस्त्री दे श्रृंगार कीते पति नूं भाए तो बिना निस्पली जांदे ने, इसे तरह जिग्यासू रूप इस्त्री दे जाप तप रूप श्रृंगार कीते होए एवें वाहिगुरू नूं भाए तो बिना निस्पली चले जांदे ने। चंदन है केसर है मुल मंगवा के वो कहने मांग भरदियां ने, संदूर लाउंदियां ने, चोआ चंदन बहु घना पाना नाल कपूर। चंदन आदਿਕ सुगंधियां नूं चुआ के बहुत ही कपड़ियां ते लाया, नाले पान खाधे, क्योंकि उपदेश देखना किहनूं दे रहे ने, उन्हां दे ढंग नाल। महाराज कहने आम लोकां दी गल करदे आ, गुरसिखां लई नहीं इह। अते कपूर आदिक बहुते सुगंधित पदार्थां दा सेवन भी कीता, गल विच मुश्कपूर दी माला भी पा लई। जे धन कंत ना भावे तां सब अडंबर कूड़। कहने जे श्रृंगार करदी होई इस्त्री जिहड़ी अपने पति नूं भाउंदी नहीं, परमात्मा नूं चंगा नहीं लगदा जिग्यासू, फिर जिहड़े बनाए हुए ने अडंबर सारे बनाओ जे बना के रखे हुए ने सारे ही झूठे ने। इस करके सतगुरु महाराज कहंदे ने चाहे आसन लगाउणे सिख ले, चंदन मोलन आया तो भाव चर्चा करनी सिख ले, खड़ावां दी जोड़ी पा के तुरना सिख ले, कन्नां च बुੱਝੇ दे के
ਬੁੱਝੇ ਦੇਣੇ ਸਿੱਖ ਲਵੇ, ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਆ ਮੁੰਦਰਾ ਆਦਿਕ ਪਾ ਲਵੇ, ਸੁਆਹ ਮਲਣੀ ਸਿੱਖ ਲਵੇ, ਭੇਖ ਬਣਾ ਲਵੇ, ਦੁਆਰਕਾ ਦਾ ਤਿਲਕ ਛਾਪਾ ਲਾ ਲਵੇ, ਜੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੇ ਧੂਣੀ ਪਾ ਲਵੇ, ਧੂੜ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜੜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸਤਰੀਆਂ, ਜਪ ਤਪ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਚੋਲਾ ਚੰਦਨ ਬਹੁ ਘਣਾ ਪਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਪੂਰ, ਸਮਾਧੀ ਲਾਉਣੀ ਸਿੱਖ ਲਏ, ਚਾਹੇ ਸੁਰਤੀਆਂ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਸਹਿਤ ਮਹਾਵਾਕ ਉਚਾਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਵੇ, ਚਾਹੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਚਾਹੇ ਮਹਾਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਚਾਹੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਚਾਹੇ ਨਿਰਗੁਣ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਚੰਦਨ ਮੋਲਣ ਆਇਆ ਕੁੰਗੂ ਮਾਂਗ ਸੰਧੂਰ, ਚਾਹੇ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਾਣ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ, ਚਾਹੇ 6 ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈ, ਚਾਹੇ 4 ਵੇਦ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ। ਇੰਨੇ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜੇ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਭਾਈ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਵਿਅਰਥ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਭਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੀਰਥ ਨਹਾਵਾ ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵਾਂ, ਵਿਣ ਭਾਣੇ ਕੇ ਨਹਾਏ ਕਰੀ, ਜਾ ਤਿਸ ਭਾਵਾਂ ਤਦ ਹੀ ਗਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਗਾਵੇ ਕਾ ਫਲ ਪਾਵਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਜਾਓ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਉਂਦਾ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਭ ਰਸ ਭੋਗਣ ਬਾਦ ਹੈ ਸਭ ਸਿੰਗਾਰ ਵਿਕਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਗਿਆਸੂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਰਸਾਂ ਦਾ ਭੋਗਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਿਸਫਲ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਾਰ ਰੂਪ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਅਰਦਾਨ ਕਰ ਮਨ ਮਹਿ ਧਰੈ ਗੁਮਾਨ, ਨਾਨਕ ਨਿਹਫਲ ਜਾਤ ਜਿਉ ਕੁੰਚਰ ਇਸਨਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਬ ਲਗ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਭੇਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸੋ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਰੰਗੇ ਜਾਂਦੇ, ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਮਨ ਦੇ ਕਠੋਰ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਂਗੀ, ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਬੈਠੀ। ਕਠੋਰ ਹਿਰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਵਿੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੰਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਿਰਦੇ ਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਦਰਵੀਭੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਮਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਆਪਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਮਨ ਕਠੋਰ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਵੀ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਹੀ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਦਾ, ਕੌੜਾ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਡਾ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਦਾ, ਕਿੱਡਾ ਕੌੜਾ ਬੋਲਦਾ। ਨਾਨਕ ਧੰਨ ਸੁਹਾਗਣੀ ਜਿਨ ਸਹਿ ਨਾਲ ਪਿਆਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਹਾਗਣੀ ਇਸਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਲਈਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਕਠੋਰ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੀਏ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪੰਥ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਪੰਥ ਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਰੂਗਾ, ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਨਾ ਛੱਡੀ ਜਾਓ, ਏਦਾਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆਪਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 2.5 ਘੰਟੇ ਦਸਵੰਧ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਦਾ, ਤੇ 2.5 ਘੰਟੇ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੱਢੋ। ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਦੇਖੋ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਘਾਟਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ। 5 ਪਾਠ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਕਰੋ, ਪੰਥ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੋ। ਆਪਦੇ ਲਈ ਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਰੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪਾਠ ਕਰਾਇਆ ਹੋਵੇ? ਕੋਈ ਕਹਿ ਲੱਖਾਂ ਚੋਂ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਚ ਆ ਗਈ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਖੰਡ ਪਾਠ। ਜੇ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣਗੇ $10 ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਨਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ, ਉਹ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਮੁੜ ਕੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਫਲਾਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਬਣਾਈ, ਅਗਲਾ ਕੀ ਕਹੂ, ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਾਇਆ, ਖਵਾਇਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੇ ਖੜੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਖੰਡ ਪਾਠ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਹੋਣ, ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਹੋਣ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਰਸ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ
ये पंथ नूं संभालो, समत बख्शो, सारिਆਂ ਨੂੰ गलत पासे जाण तो रोको, किरपा करो। सतगुरां अगे तो बेनती करांगे, सतगुरु संगत दी मान लैंदे ने। इस करके संगत बेनती करे कि सच्चे पातशाह हुण किरपा करो, बहुत भटकले असीं, बहुत खुआर होले महाराज, साडे ते मेहर करो, सानू सिक्खी बख्शो, नाम दी दात बख्शो। साडी कौम दा एक एक बच्चा नाम जपण लगे, सिक्खी नूं कमावे, अमृतधारी होवे, बाणी पढ़े, सेवा करे, और वड्डी चीज है। प्रोफैसर साहब ने दस्सिया सिख अग नहीं लाउंदा, सिख अग बुझाउंदा। फायर ब्रिगेड का जन्म सिखां तो ही होया। आ जिहड़ी दूजी एंबूलेंस का जन्म कित्थों होया? ये तो साडे तो होया, भाई कन्हैया तो होया। भाई कन्हैया जी ने देखो थां थां फिर के मल्लम लाई, पानी पियाया। ये गुरसिख आ लंगर कित्थों चलिया? आई रैड क्रॉस कित्थों चलिया? ये भी तीजे पातशाह ने चलाया, पहले पातशाह ने चलाया। भुखे साधु बैठे देख के पिता जी तो कुट खा ली, पर साधुआं नूं रोटी खवाई। चलिया तो सारा कुछ साडे तो ही आ। महाराज ने किरपा कीती है, बहुत कुछ कौम ने संसार नूं दिता। ये आपां ही जिहड़े कहने नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला ही असीं कहने, होर नहीं कोई कहंदा। अगले ने दूजे मरण डुੱਬਣ जिथे मर्जी, साडी चढ़दी कला होवे। ताइयों तो आपां थोड़े जिहा खुआर जे हुंदे, लोग कहने भोले विचारे, ये तो दूजियां दा ही सोचते रहंदे आ। दूजियां नूं भज भज के नगर कीर्तनां विच भज भज के आ तुसीं लो जी, आ तुसीं लो जी, आ तुसीं लो जी, दूजियां कौमां नूं खवाउंदे आ। ये तो करदे परोपकार, वो कहंदे दसो ये एवें वंडी जांदे ने। सो इस करके आपां ते वंडना, वंड छकना सानूं तां हुक्म है। नामदान इशनान दा हुक्म है, वंड के छकण दा हुक्म है, सरबत दा भला करना। असीं किसी दा माड़ा ना सोचीए ना करिए, पर जद हुण अगला सिर नूं ही पै जे फिर की करिए? इस करके ये भी ध्यान रखना, 99 पाव वर्त के 100वां भी करना, वो भी दस्सिया महाराज ने। इस करके सतगुरु कहते ने, जे लिखिया ना अल्लाह यार खाने, अगर ना होते गुरु गोबिंद सिंह सुन्नत होती सब की, ना होंदे 5वें पातशाह 9वें पातशाह, ना शहीदी दिंदे, ना होंदे 10वें पातशाह, इत्थे एक गुरुद्वारे बैठे होना सी आपां ने। आपां ते फिर होर ही कुछ बड़े होना सी, सिख कित्थे होना सी? उन्हां दी कुर्बानियां दा सदका सिख बने आ, उन्हां दी कुर्बानियां दा सदका गुरु घर बने आ। महाराज ने किरपा कीती, इस करके गुरु वाले बणीए, अमृत छकीए, बाणी पढ़ीए, गुरां दी कुर्बानी याद करिए, उन्हां तो प्रेरणा लैके सारे संसार दे विच भला करिए संसार दा। महाराज कहंदे ने सब तो वड्डा काम है, जन नानक धूड़ मंगै तिस गुरसिख की, जो आप जपैवर है नाम जपावै। आप नाम जपो, दूजियां नूं जपाओ, अपना भला करो, दूजियां दा भला करो, सरबत दा भला विचारिए। दुनिया दे अंदर जो महाराज ने वचन कीते ने, निंदा चुगली बदी बखीली सब बंद करिए, ईरखा द्वेष बंद करिए, सारियां दा भला जे आपां करांगे वाहिगुरू साडा भला करनगे। आओ संसार दे भले लई नाम जपीए, अपना भला भी विच होवेगा। वाहिगुरू